ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਮੈਥ ਵਿਦ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ पटवारी का पेपर सॉल्व। हाँ जी 14 मई 2023 ਨੂੰ पटवारी का पेपर होया सी जिस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੈੱਟ ਸੀ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PSSB ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ MCQ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਪਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਰਮ ਖਿਆਲੀ ਨੇਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨਰਮ ਦਲ ਸੀ ਇੱਕ ਗਰਮ ਦਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰਮ ਦਲ ਤੇ ਨਰਮ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਬਾਲ ਪਾਲ ਲਾਲ ਇਹ ਸੀਗੇ ਗਰਮ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰਮ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਰਮ ਖਿਆਲੀ ਨੇਤਾ ਇਹ ਸੀਗੇ ਇਹ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ ਜੀ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ। ਆਪਸ਼ਨ D ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਰਮ ਖਿਆਲੀ ਨੇਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ 78% ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ B, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕਿੰਨੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ 78%, ठीक है। नैक्सट है पैट्रोलीयम डैश वजों भी मशहूर है। हाँ जी पैट्रोलीयम किहदे वजों मशहूर आ? कच्चे तेल वजों। ऑप्शन C इज द राइट आंसर। नैक्सट है जी गिल्लड़ दी कमी का सब तो आम कारण हेठ लिखियां विचों किहड़ा है? हाँ जी गिल्लड़ दी कमी का सब तो आम कारण सानू सब नू पता सी बहुत ही पंजाब बोर्ड दीयां बुक्स तुसी देख सकते हो उन्हां दे विच बहुत बार पढ़ते हैं हरेक क्लास दे विच कि गिल्लड़ दी कमी कारण गिल्लड़ की कमी का जोड़ा आप बोल सकते कि गिल्लड़ का रोग आ जोड़ा कि कमी कारण होंदा आयोडीन की कमी कारण। ऑप्शन B इज द राइट आंसर है, ठीक है जी। ये तुसी ध्यान दे विच रखना। नैक्सट है GST का विस्तृत नाम की है? हाँ जी GST की जो फुल फॉर्म दसनी होवे तो की आ गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि वस्तुआं ते सेवावां टैक्स। तो ऑप्शन नंबर ये D राइट आंसर है जी, ठीक है। इस गल नूं भी तुसी ध्यान च रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नैक्सट है किहड़ी सरकारी अथॉरिटी भारत विच करंसी नोट जारी करती है? हाँ जी भारत दे विच किहड़ी सरकारी अथॉरिटी आ जिहड़ी करंसी नोट जारी करती है? ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਚੈਟ GPT ਦਾ ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ ਚੈਟਬॉट है, ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल चैटबॉट है ਤੇ ਜੋ ਡੈਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਚੈਟ GPT ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਚੈਟਬॉट ਆ ਜੋ ਡੈਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਓਪਨ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਆ ਜੀ ਬੰਜਾਰਾ ਬੇਦੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ऑप्शन C इज द राइट आंसर। नैक्सट है विश्व वातावरण दिवस हर साल डैश नूं मनाया जाता? विश्व वातावरण दिवस की जे गल करिए तो यह हरेक साल 5 जून नूं मनाया जाता। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। नैक्सट है
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ? ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਆਪ ਕਿ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 1 ਮੰਥ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। 1 ਮੰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੇਪਰ ਇਹ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮੰਥ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੁਆਰਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਬੰਗਾ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, 2024 ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਸੁਨੀਲ ਛੇਤਰੀ ਕਿਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨੀਲ ਖੇਤਰੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਵਡਾਲੀ ਡੈਸ਼ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਫੇਮਸ ਆ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਵਡਾਲੀ। ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਸੰਗੀਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਨੇ 15 ਤੋਂ 17 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ G20 ਦੂਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਮੀਟਿੰਗ G20 ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਨੇ 15-17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ G20 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ G20 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਫਿਲਮ RR ਨੇ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਸਕਰ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਲਮ RR ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ S ਰਾਜਾਮੌਲੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗੀਤ ਆ ਨਾਟੂ ਨਾਟੂ, ਤੇ ਉਸ ਗੀਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਕਰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਮੂਲ ਗੀਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ 2023 ਲਈ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਧੇ ਸ਼ਿਆਮ ਚੁਨਚੁਨਵਾਲਾ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਨਰਸਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਨਰਸਰੀ ਆਫ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਨਰਸਰੀ ਆਫ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਹਿਲਪੁਰ ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਮਿਸਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵਾ, 50,362 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਕੁਅਰ, ਤਾਂ ਵਰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਕੀ ਆ? ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਜ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਹੜੱਪਾ ਸਥਾਨ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਸਾਂਚੀ ਸਤੂਪ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਂਚੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤੂਪ ਆ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੀ
भोपाल दे नेड़े। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है 1857 ईस्वी का विद्रोह कित्थों शुरू होया सी? हाँ जी 1857 ईस्वी का विद्रोह झांसी की राणी तो ही पहला सब तो कारण झांसी की राणी तो ही शुरू होया सी। उन्हों दी मतलब कि मंग नूं ठुकराया गया सी। तो ऑप्शन नंबर सी इत्थे राइट आंसर है मेरठ। नैक्सट है हाँ जी नैक्सट तुहाडी जिहड़ी इंग्लिश है स्टार्ट हो चुकी आ। तो इस दे विच लिखदे आं आपां चूज द वन विच वैस्ट एक्सप्रैस द मीनिंग ऑफ द ईडियम्स। हाँ जी इन्हां दे विचों किहड़ा मतलब कि ईडियम्स दा वधिया मीनिंग है जिहड़ा बन सकदा? एप्पल ऑफ वन आइज। तो इस दा राइट आंसर है जी हाँ जी तुसीं सोच सकते हो आप जिहड़े स्टूडेंट सोचना चाहुंदे आ वैल्यूएबल थिंग। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है जी हाँ जी डीप अगे है डीप इस दा ओपोजिट मीनिंग दसना यानी कि विरोधी शब्द दसना तुसीं। तो इसका विरोधी शब्द की आऊगा? चलो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है हाँ जी इस दे विच सेम मीनिंग दसना विकेंट दा। तो इसका सेम मीनिंग की होगा? एम्प्टी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर है। नैक्सट है हाँ जी इन्हां दे विचों तुसीं देखना स्पैलिंग मिसटेक आ जिहड़ी जां फिर किहड़ा वर्ड है जिहड़ा करैक्ट नहीं गा। ठीक है जां जिहदे विच देख सकते हो तुसीं आप ही ऑप्शन बी इत्थे राइट आंसर है अल्फाबेट। ठीक है जी नैक्सट है हाँ जी गिवन वन वर्ड सबस्टिट्यूशन ऑफ फॉर द फॉलोइंग आ लिस्ट ऑफ नेम ऑफ बुक्स। तो इस बुक आ लिस्ट ऑफ नेम ऑफ बुक तुसीं लिखदे करदे नहीं आपां मतलब बहुते शब्दां की जगह एक शब्द लिखना। तो की होगा जी दसो जल्दी नाल हुणे इसका आंसर तुसीं लिख सकते हो। तो इसका आंसर है जी कैटलॉग। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करैक्ट। इन्हां दे विचों किहड़ा करैक्ट आ? तो इन्हां दे विचों करैक्ट है जी दीज कैटल्स आर माइन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है हाँ जी ऑल द ग्लिटर्स नॉट गोल्ड। ऑल द ग्लिटर्स नॉट गोल्ड। तो ये दसो ब्लैंक्स की जगह पर की आएगा? ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है ये ध्यान रखना तुसीं। नैक्सट है इफ शी वाइन द मैच शी डैश गैट आ लॉट ऑफ मनी। तो इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी बैल। ठीक है जी नैक्सट है चेंज द वॉइस। हाँ जी दे डिड नॉट लिसन टू मी। तो इसका चेंज करके नूं की बनेगा कि आई वॉज नॉट लिसनड बाय मी। ऑप्शन नंबर वी इज़ द राइट आंसर है। नैक्सट है चेंज द नरेशन। राधा said I am going home now। तो राधा said that she was going home then। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है जी हाँ जी इस दे विच सी ऑप्शन राइट सी। अगे आ री राइट द फॉलोइंग वाई यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाँ जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिहड़ा यूज़ करना। तो वी हैव नो हाँ जी तुसी मोस्टली देखिया भी होना कि वी दे नाल जिहड़ा है भी सानू हरेक जगह ते दिसदा। तुसी इस अंदाजा भी लगा सकदे इस इत्थों। नैक्सट है फिल द ब्लैंक विद द सुइटेबल वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस कैन यू डैश दिस स्टिक। तो इसका की आ जाना वा ब्रेक। ठीक है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है जी नैक्सट है ਜਦੋਂ कोई मूर्ख ਜਾਂ शराबी बंदा मौज ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਮਲੀਆਂ मार के खुश ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ मूर्ख ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਮਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖੋਤੇ ਦੀ ਮੌਜ ਟੀਟ ਨੇ। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है ਬੱਬੇ ਕੰਨਾ ਅਗੇਤਰ ਲੱਗ ਕੇ ਬਣਨ ਵਾਲਾ सही शब्द दसो। हाँ जी ਬੱਬੇ ਕੰਨਾ अगेतर लग के बनने वाला सही शब्द है जिहड़ा ये बनिया जी बाइज्जत। ठीक है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है। नैक्सट है डाड़ा पिछेतर लग के बनने वाला सही शब्द चुनो। तो डाड़ा लग के बनने वाला सही पिछेतर है जी बेलड़। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है हाँ जी नैक्सट है मुंडियां नूं खेडना चाहिदा है वाक विच नाम शब्द किहड़ा है।
हाँ जी, मुंडियां नूं खेडना चाहिदा है, ये है मुंडियां नाम है इहदे विच। ठीक है, नैक्सट है हवा शब्द का बहुवचन की है। हाँ जी, हवा का बहुवचन आ हवावां। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नैक्सट है लड़का सारा पानी पी गया, वाक का लिंग बदल के बनने वाला सही वाक चुनो। हाँ जी, लड़का लिंग बदलांगे तो लड़की बनूगा, तो लड़की सारा पानी पी गई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नैक्सट असी करते हैं जी, हाँ जी, केड़ा शब्द डंडी शब्द का समानार्थक शब्द नहीं है। देखो एक कच्चा रास्ता हुंदा, कच्चा रास्ता जदों आपां उहदे ते तुरदे जाइए कई वारी घाह उग्या हुंदा, कोई बंजर जमीन पई आ तां इक पही बन जांदी है, लीह बन जांदी है ना उहदे ते, तां ओह हुंदा ओहनूं आपां पगडंडी बोल दिंदे आ कि डंडी जांदी आ। ठीक है, टहनी नूं भी आपां डंडी बोल दिंदे आ। एक पूर्ण विश्राम हुंदा डंडी ये वाला, ते डांगा जिहड़ा ये समानार्थक नहींगा। ऑप्शन डी इत्थे राइट आंसर है। नैक्सट है सही शब्द जोड़ चुनो। टुकमा, टुकमा दे स्पैलिंग देख लो, ऑप्शन ए इस दा राइट आंसर है। नैक्सट है हेठ लिखिया विचों केड़ा शब्द किरिया शब्द चुनना तुसी, किरिया। हाँ जी, दीपक सवेरे दिल्ली जाएगा, तो जाएगा की आ किरिया। ऑप्शन डी इस दा राइट आंसर है। नैक्सट है उस्तत शब्द का विरोधी शब्द केड़ा है। हाँ जी, उस्तत, उस्तत का मतलब की हुंदा प्रशंसा करनी। ठीक है, तो विरोधी शब्द की होगा निंदिया करनी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, नैक्सट करते हैं तो केड़ा शब्द फॉलकलोर के अर्थां नूं प्रगटाउंदा है। तो फॉलकलोर के अर्थां नूं प्रगटाउंदा है जी लोकधारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नैक्सट है आग्या का पालन करने वाला। हाँ जी, आग्या का पालन करने वाला, इस दे लई एक वचन आ जिहड़ा तुसीं चुनना वा, जानी कि एक शब्द चुनना वा। तो आग्या की पालना करने वाले नूं असीं बोलते हैं आग्याकारी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नैक्सट है मुहावरा हवाई किले उसारना लई ढुकमा अर्थ। हवाई किले उसारना, इस दे लई ढुकमा अर्थ आ फर्जी आसां बना लैणियां। नैक्सट है हाँ जी, पंजाब दे मौजूदा राजपाल कौन हन। तो पंजाब दे मौजूदा राजपाल कौन ने, ये है बनवारी लाल पुरोहित। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नैक्सट है इन्हां विचों केड़ा पंजाब दा राज जानवर है। पंजाब दा राज जानवर आ काला हिरन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ जी, नैक्सट मैथ का पोर्शन शुरू हो चुकिया जिहड़ा कि असीं बोर्ड ते करांगे। ठीक है, बोर्ड ते करदे आं आपां मैथ एंड रीजनिंग। हाँ जी, हुण असीं करदे आ मैथ का पोर्शन जिहड़ा कि असीं शॉर्ट ट्रिक नाल कवर करांगे। सब तो पहलां तुसीं देखो ए बी अते सी का औसत भार 65 किलोग्राम है, सी अते बी का औसत भार 61.5 किलोग्राम है, ए अते सी का औसत भार 68.5 किलोग्राम है। तो इन्हां दे विचों तुसीं सी का भार पता करना। देखो जदों भी तुहानूं औसत भार की गल होवे ते सी का औसत भार बी दे नाल भी 61.5 आ, तो सी का औसत भार ए दे नाल 68.5 है। देखो सी दोनों दे विच कवर आ गया ना, सी का बी नाल औसत भार गिवन आ, सी का सानू ए दे नाल भी औसत भार गिवन आ, तो सी का ही असी पता करना। तो तुसीं जिहड़ा औसत भार है ना इन्हां दोनों का जोड़ कर लेना, क्योंकि सी का दोनों दे नाल औसत भार सानू गिवन आ। जदों असीं इन्हां दा जोड़ करांगे तो ये कितना बनूगा जी, ये बन गया तुहाडे कोले 130.0। ठीक है, देखो 5 5 10 पॉइंट की जगह तो पॉइंट ही तुसी लगाना। बहुत सारे स्टूडेंट्स नूं इहदे विच प्रॉब्लम आउंदी आ, पॉइंट की जगह तो पॉइंट लगाना। इत्थे 1 आ जिहड़ा हासिल आ गया, 8 ते 1 9, 9 ते 1 10, 6 6 12 ते 1 13। जोड़ हमेशा उदा ही होना जिवें तुसी करदे हो, पर पॉइंट के हेठां पॉइंट तो बाद जे कोई डिजिट आ तो उहनूं उहदे हेठां लिखो, जेकर नहीं गा तो उत्थे छड्ड दो, उहदी जगह ते 0 लगा लो। ठीक है, इस तरह तुहाडे कभी भी गलती नहीं होगी। तो फिर जिहड़ा तिन्नां दा औसत भार आ उहनूं इहदे विचों माइनस कर दो। 10 चों 5 गए 5, मगर रह गए 12, 12 चों 6 गए 6, तो इत्थे आ गया 65 किलोग्राम। मतलब सी का जिहड़ा भार आ वो किन्ना वा 65 किलोग्राम आ। ऑप्शन ए इत्थे राइट आंसर है। ठीक है जी, हुण आपां करदे हां पार्ट बी, जां आपां कह सकदे 104 नंबर सम। तो इहदे विच उन्होंने बोलिया कि एक मोटर बोट धारा दे नाल 2 घंटे विच 24 किलोमीटर अते धारा दे विपरीत 1 घंटे विच 10 किलोमीटर चलदी है। मोटर बोट की रफ्तार किलोमीटर प्रति घंटे विच पता करो। देखो सानू कंडीशनस दो गिवन आ, दोनों दे विच ओहदा जिहड़ा डिस्टेंस आ वो की रहिंदा वा अलग अलग रहिंदा, टाइम भी अलग अलग लगदा,
एक बार तो वो धारा के अकॉर्डिंग चल रही है, जो मतलब जिधर पानी बह रहा उधर ही किश्ती चल रही है। तो एक बार की आ धारा के विपरीत, मतलब की आ कि जिधर पानी बह रहा उस तो ओपोजिट वाली साइड चल रही है। तो हुण इहदे विच की आ, सब तो पहला पहली लाइन की जे आपां गल करिए, सानू टाइम कितना दिता होया 2 घंटे, तो उस तो बाद डिस्टेंस आ जिहड़ा वो कितना दिता होया 24 किलोमीटर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला की हुंदा स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इत्थे 24 किलोमीटर आ, स्पीड असीं पता करनी आ, तो टाइम कितना वा, टाइम हैगा 2 घंटे। तो इत्थों स्पीड 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा, इधर आके की हो गया डिवाइड, इत्थों मेरे को स्पीड आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये स्पीड बनी आ, ये पर पहली लाइन तो बनी आ। असीं की पता करना, वैसे इत्थे थोड़ी जी मिसटेक आ, जो लिखदा कि मोटर बोट की रफ्तार औसत रफ्तार पता करो। ये अगली ट्रिक आ जिहड़ी बोर्ड के आंसर की दे अकॉर्डिंग फिर बनती सी, पर उन्हें की कहता मोटर बोट की रफ्तार प्रति किलोमीटर प्रति घंटे विच पता करो। हुण असीं पहली च पता करनी आ कि दूजी च पता करनी आ, ये इत्थों श्योर नहीं होया। एग्जामिनर की गलती है कि उन्हें इत्थे औसत लिखना चाहिए सी। औसत रफ्तार पता करो, फिर सानू एग्जैक्टली क्लीयर हो जाता कि असीं किहदी मतलब कि जानदी वार पता करनी है कि धारा के विपरीत पता करनी है। ठीक है, जो औसत लिखदा तो ज़्यादा क्लीयर होना सी। पर हुण देखो दूसरी लाइन दित्ती आ कि वह जो धारा के उल्ट चलती आ तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलती आ। हुण उहदा टाइम कितना वा 1 घंटा, तो इत्थे डिस्टेंस कितना वा 10 किलोमीटर का कवर करती आ। स्पीड कितनी आ जानी है 10/1, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कि स्पीड इत्थे कितनी बन गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, हुण असीं इन्हां दी औसतन रफ्तार देखनी आ, तो जदों भी असीं औसतन रफ्तार देखनी आ तो तुसीं इत्थे देखो, औसत के लिए असीं S1 स्पीड S2 डिवाइडेड बाई 2 करांगे। 12 + 10/2 22/2, मतलब इत्थे आ गई 11, मतलब जिहड़ी उहदी स्पीड आ वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ऑप्शन नंबर इत्थे C राइट आंसर है। अगला प्रश्न असीं करदे हाँ जी। अगला देखो, रवि मोहन अते गोविंद एक कारज नूं क्रमवार 12 दिन, मतलब रवि 12 दिन क्रमवार लिखिया ना, क्रमवार का मतलब कि पहला रवि की गल हुई है तो रवि 12 दिनों के विच काम करदा, मतलब पहला उहदे बारे दस्सिया होया। पहली गल वो आ कि जिथे जिहदे बारे पहला दस्सिया ना क्रमवार का मतलब हुंदा उहने तुसीं पहला लेना वा। रवि 12 दिन, मोहन 10 दिन तो गोविंद 15 दिनों विच कोई काम पूरा करदा। जेकर तीनों मिल के काम करन तो काम किन्ने दिनों विच पूरा होने की संभावना है, ਜਾਂ काम किन्ने दिनों के विच पूरा हो सकता है। तो देखो हुण सानू मैं तुहानू करवाई हुई है इहदे विच शॉर्ट ट्रिक। सब तो पहलां तां तुसीं इत्थे की लिखने आ आदमी, ठीक है, कि किन्ने आदमी आ। उस तो बाद असीं इधर लिखना उन्हां दा काम जां दिन जां समा लिख लो। ठीक है, समा लिख सकते हैं। इत्थे आपां लिखनी है हिम्मत, जिन्हों आपां एफिशेंसी बोलते हैं, तो इधर आपां लिखना टोटल वर्क। तो किवें कड्ढना वा आदमी, हुण आदमी कौन आ, रवि आ, मोहन अते गोविंद आ। किन्ने दिन ला रहे हैं 12 दिन रवि ला रहे आ, 10 दिन मोहन ला रहे आ, तो 15 दिन गोविंद ला रहे आ। तो इन्हां तिन्नां नूं टोटल काम किन्ने आ वो इन्हां दा एलसीएम लैके पता लगू। 12 10 ते 15, ये तो जो तुसीं एलसीएम लाओगे ना तो वो इन्हां दा टोटल काम हो गया। इत्थे एलसीएम बनूगा 60। ठीक है, तो इन्हां नूं टोटल काम हैगे 60। तो हुण आपां देखदे इन्हां दी हिम्मत किन्नी है। रवि की एफिशिएंसी देखिए तो वो असी डिवाइड करके देखनी है। 60 नूं पहलां 12 ते डिवाइड कर दो, रवि की एफिशिएंसी आ गई 5। 10 नूं 60 ते जो असी डिवाइड करांगे तो इत्थे एफिशिएंसी मोहन की आ जानी आ, कितनी आ जानी है 6, तो गोविंद की बन जानी है 4। ये हैगी इन्हां दी एफिशिएंसी। हुण इन्हां दी जदों इकट्ठे हो जाणगे, जदों ये मिल के काम करनगे तो एफिशिएंसी की आ वध जानी है, हिम्मत वध जूगी ना काम करन दी। कोई एक बंदा जे मन के चलो आपां घर दे विच रोटियां बनाउने आ, जे इकल्ली एक जना कोई रोटी बना रहा वा तो उन्होंने जिथे 10 मिनट लग रहे हैं, ठीक है, एक बंदे नूं, पर जे उही 2 जाने लग जाएंगे, एक जना पेड़े करी जाऊगा है ना, दूसरा रोटी पकाई जाऊगा तो एक नाल दी नाल फड़ाई जाऊगा। जो तिन्ने मिल के काम कर लैणगे कोई 3 जाने तो काम छेती खत्म हो जाऊगा, नहीं तो इक्को जाने नूं कितना टाइम लग जाना। तो इधर देखो उही गल इत्थे बन रही है कि जो तीनों मिल जाएंगे एफिशिएंसी बढ़ जानी है, हिम्मत बढ़ जानी है, उन्नी जल्दी काम होऊगा। तो जो इन्हां दी हिम्मत बढ़ जाऊगी, तिन्नां दी हिम्मत कितनी हो जाऊगी 5 6 11, 11 ते 4 15, तिन्नां दी हिम्मत होगी 15। टोटल काम इन्हां ने 60 करने आ, हिम्मत हैगी इन्हां दी 15 तो 15 चौके हुंदा 60, मतलब इन्हां ने 4 दिनों च काम खत्म कर देना। ऑप्शन इत्थे बी राइट आंसर है। हाँ जी, अगला असीं करते हैं। हाँ जी, अगला सवाल तुसीं देख सकते हो, ए बी अते सी ने एक काम शुरू किया,
ए दा दुगुना निवेश बी दे 3 गुणा दे दुगने दे निवेश दे बराबर है तो सी दे निवेश दे 5 गुणा दे बराबर है। जेकर 1 साल बाद कुल राशि 15.5 ਲੱਖ रुपए हो जाती है तो मुनाफे विच बी का हिस्सा कितना है। जदों भी तुसी किसी दी हिस्सा पता करना ना, शेयरिंग पता करनी आ, तो हमेशा ही रेशो मैथड लाना। रेशो मैथड आ जिहड़ा उहदे नाल कदे भी तुहाडा आंसर आ जिहड़ा गलत नहीं आवेगा। तो देखो सब तो पहला सानू कंडीशन की गिवन आ कि ए दा दुगना बी दे तिगने दे बराबर है, बी दे तिगने दे बराबर आ। तो मैं इथों ए रेशो बी कढ़ लैनी आ। ए रेशो बी का मतलब की हुंदा ए वटा बी ही हुंदा ना। तो इत्थों मैं ए रेशो बी कढ़ लैनी आ, तो ये बन गई जी। देखो ए रेशो बी कढ़नी सी, बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा, इधर आके डिवाइड हो गया। सेम 2a नाल मल्टीप्लाई हो रहा तो उधर जाके डिवाइड हो जाऊगा। 3 ने एज इट इज़ आपकी जगह पर रहना। इत्थों स्टैप आ जिहड़े बहुत ध्यान नाल ते सही ढंग नाल करने हुंदे आ कि इधरला नंबर इधर आके मतलब ऑल्ट हो जाता वा, साइन चेंज होंदे आ उहदे। ठीक है, जे बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो इधर आके डिवाइड होया, 2 हुण उधर लैके जाना सी तो 3 तो आपकी जगह तो ही रहूगा ना, उन्होंने तो आप चेंज ही नहीं किया, तो 2 उधर जाके डिवाइड होगा। तो इस तरह मेरे को ए रेशो बी आ गई 3:2। ठीक है, अगली लाइन पढ़ते हैं कि ए दा दुगना सी दे 5 गुणा के बराबर आ। तो हुण मैं इत्थों ए रेशो सी कढ़ लैनी आ। ए रेशो सी कितनी बनूगी 5:2। ठीक है, हुण आपां की कढ़ना वा ए रेशो बी रेशो सी, बस इन्ना पता लग गया मगर कुछ भी नहीं रहना। ठीक है, हुण तुसीं देखो ए रेशो बी तो मेरे को आ गया 3:2, ए रेशो बी आ गया 3:2। ठीक है, तो बी अनुपात सी जां ए अनुपात सी आ, ए अनुपात सी कितना आ गया 5:2। उस तो बाद वाला स्टैप की हुंदा कि जेड़े नंबर कॉमन है इन्हां च, देखो ए इहदे च भी पिया इहदे च भी पिया, दोनों च कॉमन आ, तो ए दे कोरसपोंडिंग इत्थे 3 आ, ए दे कोरसपोंडिंग इहदे च 5 आ, मतलब इन्हां दोनों वैल्यू नूं असीं सेम कर लैंदे आ। सेम किवें करांगे, पहले नूं उही नंबर नाल मल्टीप्लाई कर दो जां एलसीएम ले लो। ठीक है, जे आपां कह सकते हैं तो पहले नूं मैं 5 नाल गुणा कर दिन्नी आ, दूजे नूं मैं 3 नाल गुणा कर दिन्नी आ, वैल्यू सेम हो जाऊगी ए दी। तो ए रेशो बी 5 नाल गुणा करन तो बाद की बनूगा 5 तीए 15 रेशो 10। इत्थे जरूर ध्यान रखना, जे गुणा तुसीं इहनूं कर रहे हो ना सारी रेशो ही होगी। 5 तीए 15, 5 दूनी 10, फिर ए रेशो सी 3 5 15 रेशो 6। ठीक है, हुण ए रेशो बी रेशो सी ये अपने को आ गया। ए किन्ना वा 15 वा, बी किन्ना वा 10 आ, ते सी किन्ना वा 6 आ। मतलब की आ कि जो नंबर कॉमन पे आ उन्होंने सेम कर लो। उस तो बाद तुहाडे कोले ए रेशो बी रेशो सी आ जिहड़ा निकल के आ गया। जदों भी तुसीं किसी दी शेयरिंग फाइंड आउट करनी आ तो रेशो मैथड ही लगाना। तो रेशो मैथड किवें लगदा, वैसे तो रेशो मैथड ही मेन आ कि इहदे नाल ही शेयरिंग आ जिहड़ी आपां फाइंड आउट कर सकते हो। हुण सानू ए रेशो बी रेशो सी आ गई 15:10, जिहदी आपां पता करनी है, बी दी रकम पता करनी है ना, तो ये बी दे कोरसपोंडिंग 10 दिता होया, वो तो तुसीं रखना उपर, हेठां सारियां रेशो का करना जोड़। 15 ते 10 25, 25 ते 6 कितना बनूगा 31, 25 ते 6 31 भी बनूगा ना। 15 ते 10 25, 25 ते 6 31। ठीक है, तो गुणा कर देना वा तुसीं जेड़े नंबर तुहानूं दिते होए आ, मतलब कि 15.5 दिता होया वा, तो ये पॉइंट मैं हटा के आफ्टर पॉइंट एक डिजिट आ तो हेठा 1 0 लगा लूँगी, 10 ही लगूगा ना जो पॉइंट हटाऊँगी। 10 नाल 10 कैंसल, 31 5 155 होंदा, मतलब बी दे हिस्से 5 लाख रुपया आया। ऑप्शन डी इत्थे राइट आंसर है, कुछ भी नहीं सीगा इहदे विच। बस एक बार रेशो मैथड जरूर ध्यान नाल करो। वीडियोज़ मैं बनाईयां हुई अलग अलग टॉपिक ते, तुसीं अनुपात वाला जिहड़ा चैप्टर आ कवर कर सकते हो। हाँ जी, अगला सवाल आ, जेकर 3x + 2y = 7 है अते 4x - y = 24 है तो x - y पता करो। देखो हाँ जी, सवाल नंबर 107 आप करन वाले हैं। हुण उन्हें की बोलिया कि 3x + 2y = 7 है, 4x - y = 24 है, तो x - y तुसी पता करना। की पता करना? x - y असी पता करना। तो सब तो पहला तुसी देखो ये कोफिशेंट 2 आ ते इहदा कोफिशेंट 1 आ। तुसी कोई भी ये वेरीएबल सेम कर सकते हो, वेरीएबल का कोफिशेंट सेम करके उन्होंने सॉल्व कर सकते हो कैंसलेशन लॉ ला के। ठीक है, एलिमिनेशन मैथड बोलते हैं, जो तुसी 10th क्लास किया।
तो हुण देखो इहनूं जदों मैं कवर करूँगी ना, इहदे विच 2 आ ते इहदा कोफिशिएंट 1 आ, मैं इहनूं 2 नाल मल्टीप्लाई कर लैंदी आ सारे नूं। पहली इक्वेशन तो उदां ही रख लैंदे आ, दूजे नूं 2 नाल कीता, ये कितना बन गया 8x माइनस 2y बराबर 24 दूना हुंदे आ जी 48, ठीक है। तो ये बन गया अपने कोले। हुण मैं की करदी इन्हां नूं ऐड करदी हां, जदों मैं ऐड करूँगी ना ये कैंसल हो जाऊगा, तो जो मैं ऐड करूँगी इन्हों ये बन गया 11x, इन्हों ऐड किया 55 बन गया, x बराबर है 11, इधर की हो रहा मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो गया 11 5 55, x तो आ गई मेरे को 5, रह के गया मगर y कड्ढण दे लई मैं पहली इक्वेशन दे विच फिल कर दिंनी आ, ये पहली इक्वेशन किसी भी इक्वेशन दे विच तुसीं पुट कर सकते हो, ठीक है। हुण मैं x नूं 5 भर दिंनी आ तो मेरे को y आ जाऊगा, ठीक है। पहली इक्वेशन च मैं भरता 3 5 15 प्लस 2y बराबर 7, 2y बराबर 7 माइनस 15, हाँ जी 7 माइनस 15 करांगे तो कितना बनूगा 8, माइनस दे 8, तो y बराबर आ गया माइनस 8 बटा 2 माइनस 4, इत्थे माइनस का जरूर ध्यान रखना, इधर 15 प्लस का सी उधर जाके माइनस हो गया, 15 वड्डा वा, प्लस माइनस माइनस होंदे आ, साइन वड्डे का लगता, ठीक है। तो हुण माइनस 8 बटा 2 माइनस 4 आ जिहड़ा y आ गया, हुण x कितना वा 5 आ, फिर माइनस, इत्थे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करनगे, x की जगह ते 5, फिर माइनस आ, माइनस नूं उत्थे ही रखो जिथे हैगा, फिर y आ, y नूं भरो, y कितना वा माइनस 4 आ, 5 माइनस माइनस प्लस 4, 9 आंसर आया, प्लस ते 9, तो ऑप्शन ए इत्थे राइट आंसर सी, ठीक है जी। अगला सवाल असीं करते हैं, हाँ जी जिन्ना हो सके पेपर नूं वध तों वध शेयर कर दो, क्योंकि जिन्ने भी स्टूडेंट्स पेपर नूं देखणगे, ये नहीं कि जिहड़े जिन्हां ने पटवारी का पेपर देना उही इहनूं देखण, क्योंकि जेकर तुसीं किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, हरेक कंपीटेटिव एग्जाम के विच क्वेश्चन आ जिहड़े रिपीटिड ही हुंदे आ ज़्यादातर, ठीक है। एक तो तुहानूं लैवल पता लग जांदा, ते तुसीं जिन्ना हो सके वध तों वध स्टूडेंट्स नाल वीडियो नूं शेयर करो। अगे है जी 108 नंबर सवाल, हाँ जी 108 जिहड़ा कि सिंपल इंटरस्ट एंड कंपाउंड इंटरस्ट दे विचों आया होया वा, जेकर 5% साल ते सालां लई एक निश्चित रकम ते मिश्रित ब्याज अते सरल ब्याज विच अंतर 122 है। हुण मैनूं की दिता होया मिश्रित ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरस्ट, पहलां तां मैनूं रेट दिता होया, जदों भी तुहानूं प्रतिशत दिता वा ना सिंपल इंटरस्ट दे विच तां ओह रेट हुंदा वा, दर हुंदी आ, 5% दिता। अगे उन्हें दूसरी लाइन के विच सिंपल इंटरस्ट ते कंपाउंड इंटरस्ट का जिहड़ा अंतर आ वो 122 दिता, ते रकम पता करनी, सिर्फ 2 चीज़ों तो तुसीं रकम लभनी है, तो किवें लभनी है ये देखो, कंपाउंड इंटरस्ट ते मिश्रित ब्याज ते सिंपल ब्याज सधारण ब्याज जिन्होंने आपां बोलते हैं, ये तो सानूं फॉर्मूले पता वा, ठीक है। कंपाउंड इंटरस्ट का फॉर्मूला की हुंदा, प्रिंसीपल 1 + r अपॉन 100 पावर टाइम, ठीक है, माइनस प्रिंसीपल, फिर माइनस सिंपल इंटरस्ट, प्रिंसीपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, तो इन्हां दा जिहड़ा डिफरेंस आ वो कितना दिता 122। देखो मैनू जो गिवन सी ना, गिवन कंडीशन दे मैं फॉर्मूले ही लिखे उन्हां दी जगह ते, कंपाउंड इंटरस्ट का फॉर्मूला इत्थे तक आ, ठीक है, इत्थों शुरू कित्थे तक, फिर माइनस आ तो माइनस लगाता, फिर सिंपल इंटरस्ट आ तो उन्हां दा अंतर 122 दिता सी, मैं उहदे विच ही भरिया वा। हुण प्रिंसीपल सारिਆਂ च कॉमन आ ना, तिन्नां च कॉमन आ, मैं पी बार कढ लिया, मगर रह गया 1 प्लस रेट कितना वा 5/10 सॉरी 100 पावर समा 3 साल, 3 साल दिता होया, हाँ जी 3 साल, इत्थे ते नहीं गा 3 साल आ, 3 सालां ते कोई रकम आ जिहड़ी इन्नी बनदी आ, मतलब उन्होंने ब्याज आ जिहड़ा अंतर 122 बनता, 3 साल आ, माइनस प्रिंसीपल आपां बाहर कढ लिया वा, तो मैं इत्थे ब्रैकेट पा दिंनी आ, ठीक है। इत्थे मगर रह गया 1 माइनस 1 इंटू 5 इंटू टाइम सानूं 3 साल का दिता बटा 100 बराबर 122 आ गया, ठीक है जी। हुण देखो 1 पाया 5 आ 20 5 100, ठीक है, 1 प्लस 1/20 रह गया, मगर जो आप एलसीएम लैके सॉल्व करांगे 21/20 बनू, 20 एकम 20 प्लस 1 21, ठीक है, 21/20 बन गया, तो प्रिंसीपल ये बन गया 21/20 पावर 3, ठीक है, माइनस 1 माइनस 15/100, कैंसल तो ये भी हो रही हैं, पर मैं इत्थे नहीं कट कर रही क्योंकि इत्थे भी पी आ, जो मैं एलसीएम लाऊंगी ना तो वो अगे जाके प्रॉब्लम आऊगी, इदा अपना ईजी बन रहा, इस करके मैं कट नहीं कर रही, तो बराबर आ गया 122 दे। हुण देखो प्रिंसीपल जिहड़ी 21 दी क्यूब आ ना, क्यूब मैं तुहानूं बहुत सारे स्टूडेंट्स नूं बोलदी हुंदी है कि क्यूब ते स्केयर याद कर लो, जिहड़ी 21 दी क्यूब हुंदी है वो हुंदी है जी 92 61, क्यूब होने का मतलब की है पावर 3 होने का मतलब कि नंबर 3 बार गुणा हो रहा, तो 20 की पावर 3 कितनी हुंदी है 8000, ठीक है, -1 -15/100
बराबर 122। हुण देखो 8000 मैं एलसीएम लै लैनी आ, सारे का एलसीएम लिया 8000, ठीक है। इत्थे बन गया 92 61, इत्थे बन गया 8000 ही, तो इत्थे बन गया देखो इत्थे 80 नाल गुणा करन दी लोड़ पैनी है, तो यह हुंदा वा जी 120, 15 8 120, उपर भी गुणा करांगे 80 नाल जीरो लग गई, ठीक है। ये एलसीएम लैके आया वा, तो इत्थे तुहाडे कोल बन गया 92 61, देखो माइनस माइनस प्लस मतलब ये जुड़ने आ, तो ये बन गया माइनस दे 92 100, माइनस दे 92 100 बटा 8000 नाल बार पी वा जो असी पता करना वा, तो 122 तुहानूं ये दिता होया। हुण 122 इधर 8000 की हो रहा वा डिवाइड, इधर जाके की हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इधर 92 61 दे विचों असीं माइनस करना 9200, मगर कितना बच गया 61, वो इधर गुणा हो रही है तो इधर आके डिवाइड हो जाऊगा, ठीक है जी। तो हुण तुसीं देखो 61 एकम 61, 61 दूना 122, तो 8000 गुणा 2, 8 दूनी 16 नाल 3 जीरो आ, तो 16000 मतलब जी अमाउंट आ वो कितनी आ 16000। ऑप्शन सी इत्थे राइट आंसर है। नैक्सट असीं करते हैं जी, हाँ जी, एक्स का मान की है जिस दे लई समीकरण 12 माइनस 6x अते 4x प्लस 2 बराबर हो जाण। हाँ जी, कंडीशन सानू दित्ती आ कि जेकर ये दोवें समीकरण बराबर होण 12 माइनस 6x बराबर 4x प्लस 2, ठीक है। जे दोवें समीकरण बराबर होण तो एक्स का मुल पता करो। हुण मैं बराबर रख लिया, जदों भी असी एक्स का मुल कढ़ना हुंदा, किसी भी नंबर का वेरीएबल का मुल कढ़ना, तुसीं की करना एक साइड वो नंबर लै जाओ। हुण इत्थे एक्स वाला 6x पिया, माइनस भी आ मूरे, तो इधर भी पिया, ये दूजे पासे जाके बराबर तो दूजे पासे जाके की हुंदा माइनस, क्योंकि ये ना एक तरह नाल बार्डर पार करने वाली गल हुंदी आ। जे आपां बिना पासपोर्ट तो बार्डर पार करते हैं तो की हुंदा वा, आपां फड़े जाने आ तो किवें पूरा बौंदल के दूजे पासे पहुँचते हैं ना, हालत ही चेंज हो जाती है, तो इन्हां दी भी हालत चेंज हो जाती है। मतलब इन्हां ने बार्डर पार जदों आना इन्हां दे साइन बदल जाते हैं। ये प्लस का सी, इधर आके माइनस हो गया, इत्थे प्लस 2 तो आपकी जगह तो ही पिया वा, लैके आपां इहनूं उधर जाना 12 नूं, क्योंकि 12 मा जिहड़ा उहदे नाल कोई वेरीएबल नहीं लग्या, ना एक्स लगी ना वाई लगी ना ए ना बी, ठीक है। तो ये उधर जाके की हो गया माइनस का। हुण माइनस दे 6 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस, ये बन गया 10x बराबर माइनस 10, तो इत्थे भी माइनस लगूगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन हमेशा वड्डे दा लगना, ठीक है। हुण माइनस नाल माइनस कैंसल, x बराबर है 10 बटा 10, ये 10 गुणा हो रहा सी ना, इधर दूजे पासे जाके भाग हो गया, 10 एकम 10 x आ गया 1। तो ऑप्शन नंबर इत्थे अपने कोल सी राइट आंसर है। हाँ जी, अगला सवाल असीं करते हैं जी। अगला सवाल तुसीं देख सकते हो, जेकर किसी गिणती दे 8/5 ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 6/10 ਹਿੱਸਾ 192 है, तो गिणती का 3/4 हिस्सा की है। हाँ जी, देखो सब तो पहला तो जो भी मैथ का पेपर या कोई भी पेपर बनाया जाता उन्होंने इंग्लिश के विच बनाया जाता, उस तो बाद उन्होंने ट्रांसलेट किया जाता, तो ट्रांसलेट करदे समय पंजाबी दे विच बहुत ज़्यादा मिसटेक्स आ जांदियां। उन्होंने नहीं, जिवें पहला भी मैं तुहानूं दस्सिया कि पिछले सवाल दे विच औसत नहीं पाया सी ना, तो हुण इत्थे भी सेम प्रॉब्लम आ कि आपां ज़्यादातर मैथ दे विच पढ़दे हुंदे आ संख्या, गिणती तो 1 तो लैके 100 तक आप आम बोलते हैं, ठीक है, पर संख्या का मतलब एग्जैक्टली किसी नंबर की गल हो रही है। तो इत्थे भी उन्हें संख्या ही लिखना सी। जो एक बार लिए तो मैनू भी ये समझ नहीं आया, पर जो इंग्लिश के विच देखिया तो पता लग्या कि हाँ उन्हें की बोलन की गल की, किवें मतलब कि पहली लाइन दे विच की मीनिंग आ, फिर पता लग्या जो आप इंग्लिश के विच देखते हैं। तो तुसीं भी एक बार जरूर देखना। तो ये की है कि 6/7 ऑफ 8/5 ऑफ नंबर, ठीक है, कोई नंबर है इत्थे किन्ना बनता वा 192 बनता वा। ये लाइन लिखी हुई सी, तो ये लाइन तो पूरा क्लीयर हो गया कि ये लिखने की कोशिश की है। तो हुण इत्थे भी मैं तुहानूं दस दिंदी हां, जेकर किसी गिणती दे 8/5 कोई गिणती आ, आपां मान लैंदे आ कि वो गिणती x आ, जां इत्थे क्वेश्चन मार्क जिवें मैं लिखे वो ले सकते हो। जे किसी गिणती दे 8/5 अगे इहदे 6/7 दा 192 बनता है, ठीक है, बस होर कुछ भी नहीं रह गया। हुण देखो 5 ते 7 इधर की हो रहे हैं डिवाइड, उधर जाके की हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो 8 ते 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके की हो गए डिवाइड। जो मैं 2 के पहाड़े ते कटूंगी जब 6 के पहाड़े ते कट कर लें, 6 तीए 18, ठीक है, फिर 6 दूनी 12, तो आ गया 32, 8 चौका 32, 4 5 20, तो 20 7 140, ठीक है, मतलब x मेरे को आ गया 140।
40 x 140 आ गया, जो भी नाल पिया सी वो दूसरे पासे लै गई, पर उन्हें बोलिया जिहड़ी गिणती आ उहदा 3/4 लभना, मतलब संख्या दा 3/4। तो हुण 1 चौका चौका, इत्थे 3 चौके 12, 5 चौका 20, 35, 35 30 आ, 5 30 15, 9 105। तो इनू जो 35 3 नाल मल्टीप्लाई करोगे ये बने 105। तो राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए 105। अगे सिंपलीफिकेशन दे विचों आया, जो भी मैं तुहानूं सिंपलीफिकेशन फ्रैक्शन डेसीमल जां फिर इंटीजर वगैरह करवाउंदी आ, तो मैं हमेशा तुहानूं दसदी आ कि हरेक पेपर आ जिहड़ा पंजाब बोर्ड दे विचों लिया जांदा। हुण तुसीं पंजाब बोर्ड दी 7वीं क्लास दी बुक उठा के देखो, गणित दी मैथ दी, पंजाब बोर्ड दी 7वीं क्लास की गणित की बुक उठाओ तो देखो आ दोने सवाल उस एक्सरसाइज दे विच पए आ। हाँ जी, बुक इत्थे जिहड़ी अपने कोल भी बुक्स हैगियां वा पंजाब बोर्ड दियां, तो मैं भी मोस्टली ज़्यादातर सम उहदे विचों ही लैनी आ, क्योंकि ज़्यादातर सम आ जिहड़े पंजाब बोर्ड दे विचों ही लए जांदे आ। ठीक है, तो इहदे विच भी तुसीं देखो सारे ही सवाल देख लिओ 7वीं क्लास की बुक फोल के, तो उहदे विचों सारे सवाल तुहाडे 7वीं क्लास चों आए हुए आ। वैसे तो पिछले साल जो पेपर होया सी इन्ना टफ लैवल का सी, वो 9वीं 10वीं के मैथ चों आया सी, ते ये 7वीं क्लास का मैथ आ। ठीक है, हुण आपां अगला सवाल करते हैं। तुसीं देख भी सकते हो, जेकर तुहाडे कोल कोई घर दे नेड़े भी बच्चा पढ़दा वा बुक लैके उहदी देख लिओ। हाँ जी, अगे मुलांकन करो 7 + 7। इत्थे जिहड़ा स्टार है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स नूं इहदा मीनिंग नहीं पता लगदा। इहदा मतलब हुंदा जी गुणा। ठीक है, स्टार का मतलब +7 / 7, ये तुहानूं दित्ती हुई है स्टेटमेंट। बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहला असी ब्रैकेट ऑफ खत्म करनी आ, मतलब ब्रैकेट खत्म करनी आ। तो ब्रैकेट खत्म करने के लिए ब्रैकेट अलग लिख लें, 7/7, 7 नाल 7 कैंसल, 7 + 1 कितना बन गया 8, ब्रैकेट हो गई खत्म, ब्रैकेट च रह गया कला 8। ठीक है, प्लस फिर डिवाइड खत्म करना होंगे, 7 नाल 7 कैंसल, रह गया 1, 1 7 7, 1 7 7, 1/1 कितना बन गया 1। देखो 1 नाल ही कितना फर्क पै जाना आंसर च। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह देंगे कि कैंसल हो गया, इत्थे 1 पाउणा भुल जाते हैं। ठीक है, हुण देखो 7 + 7 8 56 + 1। ठीक है, 7 8 56 होंगे ना, क्योंकि गुणा हो रहा, स्टार का मतलब होंगे गुणा। तो ये हो गए 56, 56 ते +1 57, 57 + 7 64। तो आंसर आ गया जी तुहाडा 64। ऑप्शन इत्थे पई आ, ऑप्शन डी 64। ठीक है, अगे भी सेम सवाल आ ब्रैकेट वाला। तो ब्रैकेट दे विच भी तुसीं देख सकते हो 8 - 8। हाँ जी, पहला भी असी जिवें मैं तुहानूं दस्सिआ कि बॉड मास का रूल आ, तुसीं ब्रैकेट खत्म करनी आ। ब्रैकेट खत्म करने के लिए ये ब्रैकेट पई है पहला विच, ते एक होर छोटी ब्रैकेट पई है, पहला इन्हां नूं खत्म करते जावांगे। ठीक है, तो 8 8 8 - 5 + 8 किन्ने होणगे 13, तो -13 बन गए, माइनस फिर ब्रैकेट स्टार्ट 8 माइनस, हुण देखो 8 - 5 + 8, प्लस 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 होंगे 8 8 16 - 5, ये रह गया 11। तुसीं ये भी कर सकते हो कि 8 - 5 3, 3 + 8 11। ठीक है, 11 बनूगा, तो इत्थे बन गया जी 11। ठीक है, तो मगर नाल करली ब्रैसिस ऑफ +10। ठीक है, हुण देखो 8 - 13 माइनस 8 - 11, यही बनिया ना 8 - 11 ब्रैकेट दे विच 11। तो 8 - 11 कितना होगा 3, पर साइन किदा लगना वड्डे दा, 11 अगे माइनस है ना, 11 वड्डा वा, तो -3 + 10। हुण देखो 8 - 10 माइनस माइनस किन्ने होंदे आ प्लस होंदे आ, तो ये कितना बन गया 13 ते 3 16 + 10। ठीक है जी, तो ये बन गया जी तुहाडे कोले 8 माइनस, इत्थे आपां देख लैंदे आ कोई गलती तो नहीं हुई अपने तो। देखो इत्थे मैं किड्डी वड्डी गलती कर दी आ ब्रैकेट सीगी पूरी। ठीक है, मैं इनू सॉल्व किया -3 बचिया, -3 बचिया जो इनू सॉल्व किया, पर एक माइनस बाहर भी पिया। ठीक है, दोबारा करवा देनी है स्टैप मैं, थोड़ा ध्यान नाल बहुत करना पैंदा है, क्योंकि एक गलती नाल सारा जिहड़ा सम आ गलत होने के चांस बन जाते हैं। आंसर हरेक किस्म के नाल सानू दिते हुंदे आ। माइनस इत्थे बन गया सी -3 + 10, ये बनिया सीगा 8 - 8 -13 माइनस माइनस +3 + 10। हाँ जी, इत्थे देखो 8 - 11 -3 बनिया सी, साइन वड्डे दा लगदा, इत्थे -3 बन गया सी, एक माइनस बाहर भी पिया, उन्होंने एज इट इज़ लिखना सी आपां।
13 ਹੁਣ देखो -13 ਤੇ +10 साइन ਵੱਡੇ ਦਾ प्लस माइनस माइनस इत्थे बन गया 10 + 10 10 नाल 10 कैंसल मगर बच गया 8 - 8 8 नाल 8 कैंसल आंसर आ गया 0 जिहड़ा कि ऑप्शन सी दे विच पिया वा। हाँ जी अगला सवाल असीं करते हैं जेकर x का y% y दे 30% के बराबर है हुण प्रतिशत आ गया जी। देखो x का 22% y दे 30% के बराबर आ ठीक है। पहला तो प्रतिशत का मतलब गुणा दा मतलब हुंदा गुणा प्रतिशत का मतलब हुंदा बटा 100 भी लाउणा 22 गुणा 30 बटा 100 100 नाल 100 कैंसल हो गए। हुण इत्थे बहुत ध्यान देण दी गल आ कि इत्थे असीं 22/x पता करना 22/x का मतलब हुंदा 22/x तो 22/x बनाउण लई ਇਹ ਜਿਹੜਾ x ਨਾਲ इधर ਪਿਆ ਵਾ मैं ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ क्योंकि इधर गुणा हो रहा दूजे पासे जाके डिवाइड हो गया तो इधर की आ 22 पिया वा उपर तो इधर की पिया वा 30 गुणा हो रहा 22 के नाल क्योंकि सानू नहीं चाहिए 30 इधर सानू कल्ला 22x ही चाहिए सी तो 30 मैं इधर ले आंदा ठीक है। हुण 2 दे पहाड़े ते कट किया 11 ते 15 तो y/x बन गया जी 11/15 जिहड़ा कि ऑप्शन डी दे विच पिया वा ठीक है। हाँ जी अगला सवाल असीं करते हैं। हाँ जी अगला सवाल तुसीं देख सकते हो 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 250 मीटर लंबे पुल नूं 20 सैकेंड विच पार करदी आ। हुण देखो समा मैनूं दिता होया 20 सैकेंड दा ठीक है। उस तो बाद एक सानूं ट्रेन की लंबाई दिती हुई है लेंथ ऑफ ट्रेन जिन्हों मैं LT लिख रही हाँ ठीक है। ये कितनी है 350 मीटर आ ते एक मैनूं पुल की ट्रेन दिती हुई आ पुल की ट्रेन दिती हुई आ तो ये की आ देखो सब तो पहला जदों एक पुल नूं एक ट्रेन पार करूगी ना पुल की आपदी ही लेंथ इन्नी हुंदी आ कि वो लेंथ नूं कवर करती आ तो इन्हां दियां जिहड़ियां लेंथ हुण पुल मूव नहीं कर रहा एक जगह ते खड़ा ना पुल कदे भी मूव नहीं कर रहा वो किहड़ा एक जगह तो दूजी जगह ते जा रहा ट्रेन तो जा रही है ट्रेन की जिहड़ी इन्हां दी स्पीड ते कोई फर्क नहीं पऊगा स्पीड ट्रेन की सेम उही रहूगी जिहड़ी हैगी आ पर जिहड़ा डिस्टेंस आ या लेंथ आ उहदे ते जरूर फर्क पैना वा क्यों क्योंकि जिहड़ी पुल की लेंथ आ बहुत ज़्यादा हुंदी आ तो 250 पुल की मीटर जिहड़ी लेंथ आ उहदे विच ट्रेन की लेंथ आ जिहड़ी ऐड होगी हमेशा ही याद रखना पुल की लेंथ हो गई सुरंग की लेंथ हो गई ये ऐड हुंदी है रेल गड्डियां वाले सवाल च ठीक है। तो हुण देखो एक 350 मीटर लंबी रेल गड्डी आ जिहड़ी 250 मीटर पुल नूं पार कर रही है तो इन्हां दी लेंथ होगी ऐड 350 प्लस 250 मीटर जिहड़ा पुल की लेंथ आ तो ये होगी टोटल जी 600 ठीक है 600 मीटर होगी टोटल। हुण सानूं टाइम कितना दिता होया वा 20 सैकेंड का दिता होया तो असीं ट्रेन की रफ्तार पता करनी स्पीड पता करनी है डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड का फार्मूला हुंदा डिस्टेंस इत्थे कितना वा डिस्टेंस आ जिहड़ा वो ट्रेन की खुद आपदी ही लेंथ हुंदी आ ठीक है क्योंकि वो अपनी ही लेंथ नूं कवर करती जाती आ तो ये हो गया 600 मीटर ठीक है। ये ध्यान रखना ट्रेन वाले सम दे विच ना जिहड़ा डिस्टेंस हुंदा वा फार्मूला यही लगना डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम पर जिहड़ी ओहदी जगह ते लेंथ आ जाती है ठीक है जी। उस तो बाद टाइम कितना लग्या 20 सैकेंड का इत्थे बन गया मेरे कोले 30 ठीक है कितना बन गया 30 पर हुण इत्थे ध्यान रखण दी गल इह आ कि इत्थे किलोमीटर प्रति घंटा लिखिया तो आप इत्थे मीटर पर सैकेंड की गल कीती आ मीटर पर सैकेंड क्योंकि लेंथ की जिहड़ी ट्रेन की लेंथ आ वो मीटर च टाइम सानू सैकेंड च मिलिया होया असीं की कढना किलोमीटर पर प्रति घंटा ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा कढण दे लई एक घंटे दे विच हाँ जी देखो इत्थे एक घंटे दे विच किन्ने होंदे आ मेरा सैकेंड क्योंकि इत्थे मैनूं सैकेंड गिवन आ ना 20 सैकेंड जदों 20 सैकेंड गिवन आ तो तुसीं की लाओगे 20/3600 क्योंकि एक घंटे दे विच 3600 सैकेंड होंदे आ ठीक है। तो इत्थे की आ 600 मीटर आ इत्थे 1 मीटर दे विच 1000 किलोमीटर हुंदे आ इत्थे तुसीं ये ध्यान रखना ठीक है। तो असीं इहनूं की कीता तुहानूं मैं दूसरे ढंग नाल भी दस दी कि जिवें मैं आंसर कढिया सी उत्थों भी आपां कर सकदे सी सॉल्व पर इहदे विच की है कि जदों असीं इस ढंग नाल करांगे तो साडे तो कदे भी गलती नहीं होगी ये मैं तां कीता वा ठीक है। असीं डिवाइड कीता तो हुण देखो अगे इत्थे तो 30 ही आ जाना तो इत्थे तुहाडे कोले 1 0 नाल 0 कट 2 0 नाल 2 0 कट हो गईयां इत्थे रह गया जी 5 तो इत्थे बन गया तुहाडे कोल 18
फिर 5 ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੀਤਾ 6 5 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 30 ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 18 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ 8 6 48 ਠੀਕ ਹੈ 6 4 10 ਇਹ ਆ ਗਿਆ 108 ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਰਾਈਟ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ 30 ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ 30 ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ 18/5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਡਾਇਰੈਕਟ 18/5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੱਸ 1.30 ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ 30 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹੀ ਦੂਰੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ 45 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਾਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਬੱਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੌਜਿਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ 1 ਘੰਟਾ 30 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਪਤਾ ਵਾ ਨਾ ਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ 60 30 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ 90 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਅਸੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੱਢਣੀ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਸਪੀਡ ਆਫ ਬੱਸ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ 60/90 ਤਾਂ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ 2/3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਮਿੰਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਟੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਡ ਆਫ ਕਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਆਫ ਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ 60 ਪਰ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ 45 ਮਿੰਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 15 ਚੌਕੀ 60 15 ਤੀਆ 45 ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 4/3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਾਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਾਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਆ 4/3 ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ। ਬੱਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿੰਨੀ ਆ 2/3 ਹੁਣ 2 ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੀ ਆ 3 ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਗਰ ਬਚ ਗਿਆ 4/2 ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ 2/1 ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਏ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 7 11 15 x 14 21 ਅਤੇ 25 ਦੀ ਔਸਤ 15 ਹੈ ਤਾਂ x ਦਾ ਮਾਨ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਔਸਤ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਔਸਤ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਟਾ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਔਸਤ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਔਸਤ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਆ 15 ਤਾਂ ਔਸਤ ਰੱਖ ਲਓ 15 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਦਿਓ 15 + x + 14 + 21 + 25 ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਟਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਬਟਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ 7 ਨੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 3 3 6 ਤੇ 1 7 ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ 7 ਤੇ 11 ਦੇਖੋ 15 ਤੇ 11 26 26 + 7 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 7 ਜੋੜੋਗੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ 33 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 14 ਤੇ 21 ਤੇ 25 ਜੋੜੋਗੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 93 + x ਬਟਾ 7 ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਣ ਜਾਣਾ 15 15 ਇਹ 7 ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਿਵਾਈਡ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਣਾ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ 93 + x। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਸੀ ਉਹ ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਹੀ ਆਉਣਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। x ਕਿਉਂਕਿ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 15 7 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 105 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 93 + x x ਬਰਾਬਰ ਹੈ 105 ਇਹ 93 ਇੱਧਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 12 ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 117 ਨੰਬਰ ਸਮ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਇੱਕ ਆਇਤ ਦੇ ਪਰਿਮਾਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਰਗ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ 40 ਮੀਟਰ ਆ ਤਾਂ ਅਤੇ
ਆਇਤ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ ਦਾ 2/3 ਹੈ ਤਾਂ ਆਇਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਤੇ ਆਇਤ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਜੇਕਰ ਵਰਗ ਦਾ 40 ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਇਤ ਦਾ ਵੀ 40 ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਮਾਪ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਵਰਗ ਦਾ 40 ਆ ਤਾਂ ਆਇਤ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 40। ਹੁਣ ਆਇਤ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 40 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਮਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਘੇਰਾ, ਘੇਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਘੇਰਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਜਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 2 × L + B। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਪਰਿਮਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਲੰਬਾਈ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਲੰਬਾਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਚੌੜਾਈ ਆ। ਲੰਬਾਈ ਪਲੱਸ ਲੰਬਾਈ ਪਲੱਸ ਚੌੜਾਈ ਪਲੱਸ ਚੌੜਾਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ 2L + 2B, 2 ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ L + B, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਹੋਰ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਲੰਬਾਈ ਪਰਿਮਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਆ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਲੰਬਾਈ L ਆ ਤੇ ਉਹ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਆਇਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌੜਾਈ ਆ ਲੰਬਾਈ ਦਾ 2/3 ਆ। ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 2/3 ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌੜਾਈ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਲੰਬਾਈ ਦਾ 2/3, 2/3। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੌੜਾਈ ਆ ਉਹ 2/3L ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਆ ਉਹ L ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਰਿਮਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਭੁਜਾ ਕੀ ਆ ਲੰਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ 2/3, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, L ਫਿਰ +L + 2/3L ਪਲੱਸ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ 4 ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਇਤ ਦੀਆਂ। ਪਰਿਮਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ 40, ਤੋਂ ਆ 40 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ L ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਮੈਂ L ਲੰਬਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ 2L + L ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ 2, ਜੋੜ ਹੋ ਰਿਹਾ 2 ਵਾਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ 2L ਲਿਖਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਇਹ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, 2 + 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 4/3। ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋਲਵ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਦੂਣੀ 6L + 10L = 40 × 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 10L = 40 × 3 ਤੇ L ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 40 × 3/10। 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 12। ਮਤਲਬ ਆਇਤ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆ 12 ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਇਤ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆ 2/3 ਕਿਹਦਾ 12 ਦਾ। 4 × 12 ਤਾਂ ਆਇਤ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਆ ਗਈ ਜੀ 8। ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਨੂੰ 8 ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ, ਆਇਤ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਖੇਤਰਫਲ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੰਬਾਈ ਹੈਗੀ ਆ 12 × 8, 12 8 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 96। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਸਾਡਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। 4 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 19 23 ਤੇ 83 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਉਹ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਹੀ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ 45 ਇਦਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, 9 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, 15 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ 45 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਔਡ 1 ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਲੈਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਪੇਪਰ ਵੀ ਆਪਣਾ +2 ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, 10th ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਫਰਸਟ ਲੈਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਟਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਥਰਡ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਮ ਇਹੀ ਵੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ PR ਤੇ PR, PA ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜੇ PP ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ A ਆਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ A ਵਾਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ E,
फिर ई वाला आवेगा, ये भी रिजैक्ट हो गया। आप अखीर वाला लभना, तो सब तो पहला ए पी आर ते पी आर इन्हां दोनों चों देखना होना सी। पी आर ते पी आर दोनों चों कोई आ सकदा, पर जे ए की गल करिए ए पहला होंदा ना, फिर असीं थर्ड लैटर चेक कर लवांगे। तो ऑप्शन इत्थे बी राइट आंसर है कि प्रोटैक्ट आ जिहड़ा ये अखीर ते आवेगा। नैक्सट हाँ जी, अगे देखो तुसीं दिते गए विकल्पां विचों वखरे नूं चुनो। इहदे विचों तुसीं वखरा चुनना, तो सानूं देख के पता लग रहा कि उन्हें महादीप ते महासागर लिखे आ। महासागर की हुंदा वा कि पानी वाला एरिया जिथे पानी आ, ठीक है। वो किन्ने आ तुहाडे, महासागर किन्ने आ अपने, हाँ जी महादीप अपने 5 ते महासागर आ 7, ठीक है। महासागर 7 आ, ते इन्हां दे विचों एशिया महादीप आ, यूरोप महादीप आ, आस्ट्रेलिया महादीप आ, दक्षिणी अमरीका महादीप आ, दक्षिणी उत्तरी अमेरिका महादीप आ, ठीक है। तो आर्कटिक एक महासागर है, पानी वाला एरिया। ऑप्शन डी इत्थे राइट आंसर है। हाँ जी, नैक्सट है, सब तो पहले तुसीं साइन कट के लिख लेने, उस तो बाद स्टेटमेंट लिखो की आ कि 16 20 24 टी 8 आर फिर 6 टी 2 के 3, ठीक है। हुण असीं साइन लिख लेने आ 16 20 का मतलब आ प्लस 24, टी का मतलब आ डिवाइड 8, आर का मतलब आ माइनस फिर 6, टी का मतलब आ डिवाइड फिर 2 फिर के का मतलब आ 3। तो 16 ते 24 सब तो पहला बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग असीं डिवाइड खत्म करना, तो यही बनया, ठीक है। हुण देखो 16 प्लस 8 तीया किन्ने हुंदे आ 24, ठीक है। फिर माइनस 2 तीए किन्ने हुंदे आ 6 9, तो 16 दे विच असीं 3 जोड़ांगे, ये किन्ने हुंदे आ 19 माइनस 9 किते ये बन गए जी साडे कोले 10। तो ऑप्शन नंबर इत्थे ए राइट आंसर है। अगला सवाल असीं करदे हां, पी डी का भरा है, हाँ जी ब्लड रिलेशन के विचों आया होया सामा जिहड़ी बराबर की जनरेशन होंदी है। देखो पी डी का भरा है, एक्स पी की भैन है, पी की आ डी का भरा वा, भरा वा तो प्लस नाल डिनोट कर लेने, जे फीमेल होगी तो माइनस नाल डिनोट कर लेने। एक्स पी की भैन है, एक्स की आ पी की भैन, अगे इन्हां दी भैन भी दित्ती है, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोलिया कि ए एफ का भरा है, इतों कुछ क्लीयर नहीं होया क्योंकि ए एफ सानू नहीं पता, मैं अगली लाइन पढ़ती हाँ। एफ डी की धी है, हुण जरूर पता लग गया कि एफ की आ डी की धी आ, धी आ तो माइनस नाल डिनोट करते हैं। अगे एम एक्स का पिता है, एक्स का पिता है एम, मतलब इन्होंने सारिਆਂ का पिता है एम, ठीक है। उस तो बाद की दिता होया उन्हें एफ डी की धी है, तो ए एफ जी लाइन मैं छड्डी सी उहदे ते आउने आ, ए एफ का भरा है, ए की आ भरा हो गया। उन्हें बोलिया कि ए दा चाचा कौन आ, ए दा चाचा कौन आ, इत्थे सानू डी का जेंडर तो गिवन नहीं कि वह फीमेल है कि मेल आ, ठीक है। तो आप इन्हां रिश्तियां तो जरूर पछाण लिया कि मेल ही होऊगा, तां ही उन्हें चाचा पूछया। तो एफ का चाचा कौन आ पी, तो ऑप्शन नंबर इत्थे सी राइट आंसर है। नैक्सट है जी, हाँ जी अगे तुसीं देख सकते हो, दिते गए क्रम विच लुप्त वर्णमाला लभो Z X V T, इत्थे असीं पता करना लुप्त वर्णमाला इस जगह ते जिहड़ा प्रश्न चिन्ह दिता होया। फिर पी बी तुसीं देखो एक्स किनवें नंबर ते हुंदा, कोड दे के भी कढ सकते हो, ए बी सी लिख के भी कढ सकते हो। जिहड़ा Z आ 26 ते हुंदा, X 24 ते, V 22 ते, T 20 ते अगला फिर 18 बनूगा, ठीक है। इत्थों ये भी पता लग रहा कि ईवन नंबर लिखे हुए आ, ईवन नंबर लिखे हुए आ 26 24 22 20 ते 18, 18वें नंबर ते आउंदा आर, तो ऑप्शन बी इत्थे राइट आंसर है, ठीक है। अगे देखो तुसीं अगले दे विच उहने बोलिया कि एक चुनो जो दूजियां तो वखरा होवे, तो डी तो एफ ते एच, डी तो जो तक असीं एफ तक जाने आ, डी ई छड्ड के एफ ले लिया, फिर एफ तो बाद एच, डी ई एफ जी छड्ड के एच ले लिया, ठीक है। एक छड्ड के अगला ले रहा वा, पर जो असीं मैं जे एल नूं देख लैनी आ, उस तो पहला इहदे च भी देख लैने कि किसी होर ते रूल लग रहा। आर क्यू तो बाद देखो क्यू, क्यू तो बाद आर एस, क्यू आर एस ये इकट्ठा ले लिया उन्होंने, क्यू आर एस ये इकट्ठा लिया होया, हो सकता यही अलग होवे, करके देखना पैना आपां नूं ये भी। फिर देखो यू, यू तो बाद वी छड्डता, डबल्यू ले लिया, फिर एक्स छड्डता, वाई ले लिया, मतलब यही वाला कंसैप्ट ये लग गया, मतलब यही किसी होर ते भी लगना चाहिए। जे, जे तो बाद के छड्ड के एल ले लिया, एल तो बाद एम छड्ड के एन ले लिया, मतलब ये तो तीनों ही इक्को जिहे बन रहे हैं, एक छड्ड के अगला ले रहा, तो ऑप्शन नंबर सी ही इत्थे राइट आऊगा, क्यू आर एस इकट्ठे पए आ तिन्ने ही ABC दे विच। तो अगे देखो किसी खास लैंगुएज दे विच कंप्यूटर नूं कोई कोड दिता गया वा, उस लैंगुएज दे विच तुसीं मेडिसन नूं कोड दो जिहड़ा उहने कंप्यूटर नूं दिता।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜੀ RNLOTSD। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਚ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਲੈਟਰ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਜਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਡ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਨ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਸੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲਾਸਟ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਮ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਐਮ ਲਾਸਟ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਰ ਆ ਤਾਂ ਆਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਈ ਆ ਤਾਂ ਈ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਈ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਈ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਨ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, O ਮਾਈਨਸ 1 N ਬਣ ਗਿਆ, M ਮਾਈਨਸ 1 L ਬਣ ਗਿਆ, P ਮਾਈਨਸ 1 O ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। E ਮਾਈਨਸ 1 D ਆ ਗਿਆ, D ਮਾਈਨਸ 1 C ਆ ਗਿਆ, I ਮਾਈਨਸ 1 H ਬਣ ਗਿਆ, C ਮਾਈਨਸ 1 V ਬਣ ਗਿਆ, I ਮਾਈਨਸ 1 H ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ N ਮਾਈਨਸ 1 M ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਕੋਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਆਪਸ਼ਨ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 60 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੱਬੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ 26ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਤੋਂ 26ਵੇਂ ਤੇ ਆ। ਜੇ ਟੋਟਲ 60 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ, ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਉਹ 26ਵੇਂ ਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਹੈਗੇ 60 ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਥਾਨ ਕਿੰਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, 26ਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹ ਆਪ ਆ, 25 ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਟੈਪ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ 60 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ, 26 ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ, ਮਗਰ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? 34 ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਗਰ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ 34, ਮਤਲਬ 34 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਥਾਨ ਦੱਸਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ 34 ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ 34 ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾ, 25 ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ। ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ 60 ਬਣਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ, 34 ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 35ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ MS ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ MS ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੈਮਰੀ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕਥਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਕਥਨ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਡਾਟਾ ਗੈਟਸ ਲੋਸਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਵੈਨ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਸਵਿਚ ਆਫ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁੰਜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਿਫਟ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਰਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟੈਕਸਟ ਖੋਜਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਟੈਕਸਟ ਖੋਜਣ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਫਾਊਂਡ ਕਰਨਾ, ਲੱਭਣਾ, ਫਾਊਂਡ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ Ctrl+F। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਗਾ MS ਆਫਿਸ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੋਰਟਰੇਟ ਐਂਡ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਪੋਰਟਰੇਟ ਐਂਡ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ
पेज ओरिएंटेशन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, बी ऑप्शन। नैक्सट है, जेकर तुहानू वर्ड डॉकूमेंट विच किसी टैक्सट नू मूव करन दी लोड़ पवे तो तुसीं हेठां दित्तिआं विचों किहड़ा कारज करोगे। तो ये तो बहुत सिंपल, असीं अक्सर मोबाइल दे विच भी यूज़ करते हैं कि पहलां कट कर दिंदे आ फिर पेस्ट कर लैंदे आ। तो ऑप्शन बी इत्थे राइट आंसर है। हाँ जी, नैक्सट है, वर्कशीट की मुढ़ली इकाई जिस विच तुसीं MS एक्सल विच डाटा दाखिल करते हो उसनूं की कहा जाता है। हाँ जी, वर्कशीट की मुढ़ली इकाई जिस दे विच असीं MS एक्सल दे विच डाटा दाखिल करते हैं उसनूं असीं सैल बोलते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हेठां लिखियां विचों किहड़ा ईमेल पते का सही फॉर्मेट है। हाँ जी, ईमेल के लिए पहलां आपां नाम लिखते हैं फिर @gmail.com यूज़ हुंदा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। नैक्सट है, हेठां लिखियां विचों किहड़ा पंजाब का खेतर नहीं है। हाँ जी, पंजाब का खेतर नहीं गा अवध। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है, पंजाब के देशांतरी विस्तार की सीमा कितनी है। हाँ जी, पंजाब के देशांतरी विस्तार की सीमा वा 73.55 डिग्री पूर्व टू 76.50 डिग्री पूर्व तक। देखो पंजाब आ जिहड़ा आ मान लो भारत अपनी धरती आ, ठीक है, इत्थे आ जांदा वा एशिया महाद्वीप ते इत्थे उहदे विच पंजाब की स्थिति आ। ठीक है, तो पंजाब की जिहड़ी स्थिति जे आपां देखनी होवे ग्लोब ते ग्लोब दीयां ये विस्तार सीमा वा ना तो ये पूर्व टू पूर्व ही बनती है। तो ऑप्शन नंबर ए इत्थे राइट आंसर है, पूर्व टू पूर्व। यही तुसीं ध्यान दे विच रख लो, बहुत आ। ठीक है, पर इहदे विच जिहड़े नंबर आ उन्हां नूं तुसीं ध्यान दे विच जरूर रखना वा। 73.55 डिग्री पूर्व टू 76.50 डिग्री पूर्व तक। नैक्सट है, हेठ लिखिया विचों किस सूफी संत नूं पंजाबी का पहला कवि मन्निया गया। तो यह मन्निया गया जी शेख फरीद नूं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है, हेठ लिखिया मुगल इतिहासक रचनावां विचों किस विच पंजाब दा उस खेतर वजों जिक्र किया गया जिस नूं लाहौर अते मुल्तान प्रांतां विच वंडिया गया। तो आईने अकबरी दे विच किया गया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है, महाभारत विच पंजाब दा वर्णन डैश वजों किया गया। हाँ जी, महाभारत विच पंजाब दा वर्णन पंचनंद वजों किया गया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है, रामायण ਅਤੇ महाभारत ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਨੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ठीक है, ਅੱਗੇ आखिरी सिख शासक कौन सी। हाँ जी, सिख साम्राज्य का लास्ट सम्राट कौन सीगा। तो ये सीगे महाराजा दलीप सिंह। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है जी, इन्हां विचों किहड़ी पंजाब की लोक कढ़ाई कला है। हाँ जी, पंजाब की लोक कढ़ाई कला है फुलकारी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हाँ जी, रावी नदी का प्राचीन नाम की है। हाँ जी, मैं तुहानूं ऑलरेडी दसदी हाँ, जो भी आप जीके दे विच कदे भी रावी का नाम आ जाता जां रावी बारे कोई होर गल भी आउंदी है कि इसका पुराना नाम परुशनी आ, व्यास का भी पाशा वा। ठीक है, नैक्सट है, 1948 विच पंजाब की रियासत जिस विच पटियाला, नाभा, मलेरकोटला, जींद, कपूरथला, फरीदकोट, नालागढ़ ते कलशियां शामिल सन। इन्हां नूं मिला के एक पैप्सू बना दिता गया सी नवां राज। ते पैप्सू का अर्थ की सी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनीयन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है, पंजाब विच किन्ने जिले हैं। तो वर्तमान समय पंजाब दे विच 23 जिले आ। नैक्सट है जी, पंजाब के उच्चे नीवें मैदानी खेतर अते कंढी इलाके इस किस्म की बनस्पति के घर हैं। तो इस कथन विच जिक्र की गई बनस्पति किहड़ी है। तो इस कथन दे विच जिक्र की गई बनस्पति है जी ऊसण खुश्क पतझड़ी बनस्पति। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है, हेठ लिखिया विचों किस गुरु साहिबान ने मंजी प्रथा की स्थापना की। गुरु अमरदास जी ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है, 1590 विच गुरु अर्जन देव जी द्वारा रावी अते व्यास दरिया के विचकार एक नवे शहर की स्थापना की गई सी। तो उसका नाम की है। हाँ जी, गुरु अर्जन देव जी ने तरन तारण बसाया। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। देखो रावी अते व्यास का विचकारला इलाका माझा आउंदा वा। माझे दे 2 जिले लिखे आ ते इहदे ते तुसीं अंदाजा लगा सकते सी कि गुरु रामदास जी ने बसाया वा। तो फिर गुरु अमरदास जी का तरन तारण। ठीक है, नैक्सट है, लाहौर की पहली संधि ते कदों दस्तखत किए गए। 9 मार्च 1946 नूं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हाँ जी, इस दे नाल साडी अज दी ये वीडियो खत्म हुंदी है। तो वीडियो तुहानूं किस तरह की लगी किरपा करके कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दस देना। जेकर वीडियो चंगी लगी होवे तां प्लीज़ वीडियो नूं लाइक अते शेयर करना ना भुलना। धन्नवाद जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।